who is Amber Khalid. She is a renowned registered dietitian and a certified diabetes educator. She is currently working with the diabetes education program at the Wellfort Community Health Services in Malton. She has been a professional over the last 12 years, and she has been working, her educational has been for a 12 years of her years experience, but she's been practicing for the last 10 years. She is compassionate and she's hardworking. She has been trying to get the optimization in the health, and she wants to help people who are living with chronic health condition. As for the diabetes education program, Amber uses her knowledge and expertise to educate clients in making unique and positive lifestyle changes to manage diabetes and prevent and delay the complications associated with diabetes. We know that diabetes has become so widespread. They say normally 1 in every 5 in the population, 1 in every next 5 person has diabetes. So, you know, it is a lifestyle. So it could be a lifestyle change which you need to make, but to get your health better on track, I think it's going to be amazing today what Amber has got back and is going to give us the guidance on diabetes. She also provides patients focused care through one-on-one counseling sessions who are living with diabetes and who are also at the risk of diabetes. And Amber plans and conducts group education sessions to assist in the promotion of health and incorporate self-management skills in the community to enable individuals to manage their chronic conditions. So welcome on board, Amber. We are all so delighted to have you, and we look forward to hearing from you. Thank you so much, Anjana, for such a nice intro. Hello everyone, Namaskar, Assalamu alaikum. सब कैसे हैं? आज मेरा आप लोगों के साथ इस सीजन का एक्चुअली लास्ट सेशन है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है वो मेरी पार्टनर कीशा आएगी। अभी हम लोगों के कुछ प्रोग्राम में ऐसी चेंजेस हुई हैं कि उस वेडनेसडे को मुझे किसी और प्रोजेक्ट पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे लोग भेज रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा है कीशा से बात कीजिएगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि कीशा जो है वो इंग्लिश में बात करेंगी, तो उस वक्त फिर इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अपने ही सेंटर में से कोई ट्रांसलेशन के लिए मिल जाए, वरना फिर मैं उस्मा से कांटेक्ट करूंगी और हो सकता है फिर हमें अपने यहाँ पर किसी को यूज करना पड़े फॉर ट्रांसलेशन। अच्छा, वो वाला जो सेशन होगा ना, मेरी कोशिश है कि मैं आज ही आप लोगों के सारे सवाल जवाब दे दूं, लेकिन उस वाले सेशन में मोस्ट लाइकली मैंने कीशा को यही बोला है कि वो आप लोगों से फीडबैक ले या जो भी है, और उसके अलावा वो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेगी, ठीक है ना? क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था 12 सेशन का, तो मैं नहीं चाहती कि ये ऐसे अधूरा रहे। और दूसरी बात ये है कि वो है डायबिटीज नर्स एजुकेटर, और मुझे आप लोगों का पता है कि आप लोग पूरा सेशन रन कर सकते हैं अपने सवालों के साथ, तो आप लोग उसे सवाल पूछिएगा, वो आप लोगों को जवाब देगी, तो फायदा तो हो ही जाएगा। जबान का थोड़ा मसला होगा, लेकिन वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वी विल फाइंड द सोल्यूशन, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। या तो मैं उसके साथ एक ट्रांसलेशन के लिए बॉनी से बोलूंगी अपनी मैनेजर से कि वो साथ भेजे, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी किसी को। अच्छा, अब जो आज there is no problem, everyone can understand. Yes. Actually, if that's the case, then I think that should be easy. Oh, our groups naturally they are very intelligent and they नहीं, इंटेलिजेंस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। They can understand, yeah. हाँ, जबान का प्रॉब्लम There's no problem, yeah. परफेक्ट। तो आज जो टॉपिक है मेरे पास, वो बेसिकली उसका नाम है डायबिटीज मैनेजमेंट, लेकिन मैं उसमें फोकस करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को, डायबिटीज के अंदर HbA1c को। मुझे आज आप लोगों को हो सकता है बता भी चुकी हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, जो इस चीज पर फोकस करवाना है कि डायबिटीज की जब डायग्नोसिस होती है तो उसमें क्या रोल होता है HbA1c का, जब कोई डायबिटीज के साथ जी रहा होता है तो उसमें HbA1c का क्या रोल होता है, और HbA1c के टारगेट्स क्या होने चाहिए, जब हम कहते हैं अनकंट्रोल डायबिटीज तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये सारी बातों को मैं एक तरह से समराइज करूंगी कि गुड डायबिटीज, बैड डायबिटीज, हाउ वी नो दैट, ठीक है ना? तो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, उस प्रेजेंटेशन को सिर्फ हम लोग ऐसे ही इस तरह फॉलो करेंगे कि एक चीज स्क्रीन पे मौजूद है, लेकिन हमारा अपना एक टॉपिक चलेगा क्योंकि हमें फोकस रखना है HbA1c पर, ठीक है? तो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अपनी, और आई होप आप लोग देख सकेंगे।
जी, दिख रहा है ना आप लोगों को? डायबिटीज मैनेजमेंट क्या? ओके, perfect. So let's start the slideshow. तो अभी मुझे अच्छा लगा अंजना ने भी बात को इसी तरह स्टार्ट करा कि डायबिटीज की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे कनाडा के अंदर इस वक्त 2018 की ये रिसर्च है और जो डायबिटीज कनाडा के जर्नल से हमने निकाला था, 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और उनमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। सिर्फ 10% लोगों को टाइप 1 होती है, लेकिन ये बात बहुत खतरे वाली बात है कि 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि 3 से ये 5 मिलियन हो जाएगा 2025 तक, जो कि डेफिनेटली कोई गुड न्यूज नहीं है। अच्छा, डायबिटीज में होता क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये बस छोटी सी पिक्चर है आप लोगों की समझ के लिए और आसानी के लिए। तो ये जो पीले रंग का है ये है सेल और इसके अंदर जो है वो शुगर जाती है। ये जो हंसते खेलते जा रहे हैं क्रिस्टल से, ये बेसिकली शुगर सेल के अंदर जाती है और वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी ये सेल इतना हैप्पी रहता है। इसका दरवाजा किस चीज से खुलता है? इंसुलिन से खुलता है। इंसुलिन उस ताले की चाबी है जिसके थ्रू हमारी एनर्जी बनती है। तो हम जब खाना खाते हैं, जैसे एप्पल बना हुआ है यहाँ पर, वो एप्पल मैंने खाया, वो डाइजेशन के बाद वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो रोटी का एक टुकड़ा है, आधा ब्रेड का स्लाइस है, या मैंने चावल खाए, या मैंने दूध पिया, या मैंने दही खाया, सारे कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेस के मैंने नाम लिए शॉर्ट में, वो मैंने खाया, वो शुगर में कन्वर्ट हुआ आफ्टर हाजमे के बाद, आफ्टर डाइजेशन। जब वो शुगर में कन्वर्ट होता है या ग्लूकोज में, अब उसको जाना है सेल में। अगर वो सेल के अंदर नहीं गया तो वो जिस्म में इधर उधर घूमता रहेगा। अगर वो सेल के अंदर चला गया तो एनर्जी बनेगी, वी फील गुड, आवर सेल विल फील गुड, ऑल हैप्पी। इंसुलिन कम बनती है डायबिटीज में। समटाइम्स ये ताले की जो चाबी है ये जंग वाली हो जाती है, रस्टेड हो जाती है, ताला खोल नहीं पाती है, तो इनइफेक्टिव हो जाती है, राइट? तो इनइफेक्टिव यानी अपना काम नहीं करता, डिफेक्टेड भी आप कह सकते हैं, या लैक ऑफ इंसुलिन हो गई। ये दोनों सूरतों में क्या होता है, हमें डायबिटीज हो जाती है। एक और पिक्चर है कि ये इंसुलिन आई और उसने वो ग्लूकोज चैनल ओपन किए और ग्लूकोज जो है फिर अंदर चली जाती है सेल के। दो तरह की डायबिटीज की बात शुरू में करी थी, कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, मतलब बेसिक है कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज है, दोनों के अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। टाइप 2 डायबिटीज में तो ये प्रॉब्लम हो रही है, टाइप 1 डायबिटीज में तो चाबी ही नहीं है सिरे से, नो इंसुलिन एट ऑल। रस्टेड होना, डिफेक्टेड होने की बात तो बाद में आती है, इंसुलिन ही नहीं है तो उन लोगों को इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट मैनेजमेंट है, बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। टाइप 2 डायबिटीज इज समथिंग जिसकी मैं एक्सपर्ट हूँ और जिसकी हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, जिस पर ये आज हम फोकस करेंगे। और टाइप 1 डायबिटीज आप देख ही लें कि यहाँ सिर्फ 10% है, टाइप 2 डायबिटीज ही है जो कि 90% है। और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको तस्वीर से समझाया, पैंक्रियाज मेक्स इंसुलिन बट नॉट इनफ, some of the insulin doesn't work, it can manage with diet, exercise and medication। इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज को लेकर, क्योंकि इसको मैनेज कर सकते हैं खाने से, एक्सरसाइज से और फिर दवाइयों से भी। अब जो अगला सवाल है वो आप लोगों की नॉलेज का है कि इफ आई हैव टाइप 2 डायबिटीज एंड नाउ आई नीड इंसुलिन, डू आई नाउ हैव टाइप 1 डायबिटीज? अगर किसी को टाइप 2 थी और उसको इंसुलिन लेनी पड़ रही है तो क्या वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया? क्या लगता है आप लोगों को, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है जी, फॉल्स हो गया। False. False. कॉन्फिडेंस से बोले, कॉन्फिडेंस से। False. False. फॉल्स फॉल्स ये बिल्कुल फॉल्स है भाई। इंसुलिन भी तो एक दवाई है ना। अगर मैं गोली खाती थी या मैं टीका लगाती हूँ, या मैं, अब तो ऐसी दवाइयां भी आ गई हैं जो इंसुलिन नहीं है पर वो टीके हैं, ओज़ेम्पिक, जो पेट पे लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइप 1 एक टोटली डिफरेंट थिंग है, टाइप 2 और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती हैं, ये ऐसा नहीं है। नाम एक है, मेरा बड़ा दिल चाहता है इनके नाम ही अलग कर देने चाहिए थे ताकि किसी को कंफ्यूजन ही ना होती। एक और सवाल आप लोगों के लिए, आज आप लोगों की नॉलेज का इम्तिहान लेना चाहिए ना, 11 महीनों से हम आपको पढ़ाए चले जा रहे हैं। People only develop diabetes if they consume too much sugar. True. False. ट्रू True. False. नो 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 नो
टेंशन से भी, हर्षा जी आपको दोबारा इसी क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा टेंशन से भी बढ़ता है ना डायबिटीज? टेंशन से बढ़ता है, चीनी खाने से थोड़ी बढ़ती है। चीनी से अच्छा, नहीं बढ़ता। हाँ, चीनी बढ़ने से शुगर लेवल बढ़ेगा। एक्चुअली आपका आधा जवाब सही है, लेकिन डायबिटीज के यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ था डेवलप। डेवलप कैसे? डेवलप तो वो होती है, इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है कि मेरी बॉडी ने इंसुलिन कम बना रहा था या काम नहीं कर रहा था, वहां से मेरी डायबिटीज डेवलप हुई थी। चीनी बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन आप आधा का जवाब सही है कि चीनी जो है वो हमारी शुगर को बढ़ा रही है, पर डायबिटीज डेवलप नहीं होती है। तो यस, इट इज false. हटा दो, निकलते नहीं निकल। अब छोटा सा एक दो स्लाइड्स हैं जो मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए रखी थी। आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स पे बात करनी चाहिए डायबिटीज की, भाई होती क्यों है, क्योंकि आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को हैप्पीली फॉर्चुनेटली डायबिटीज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को जस्ट बॉर्डर लाइन है। तो जिनको डायबिटीज नहीं है उनको बहुत फोकस करना चाहिए कि देखो मेरे कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, तो मुझे आई शुड लीड इवन हेल्थियर लाइफ सो दैट कि वो मुझे आए ना, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स हमारे चांसेस बढ़ा देता है डायबिटीज होने के। और कुछ रिस्क फैक्टर्स मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, विच इज द गुड न्यूज, कुछ आई कैन नॉट कंट्रोल। तो पहले हम बैड न्यूज देखते हैं कि भाई कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। पहला रिस्क फैक्टर हमारी एथनिसिटी, राइट? हमारी एथनिसिटी, साउथ एशियन, हम सब साउथ एशियन है, सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो अफ्रीकन होते हैं, ब्लैक अमेरिकन जिनको कहते हैं, अरब, हिस्पैनिक, इंडिजीनियस, और इन्होंने एशियन अलग लिखा है और साउथ एशियन अलग लिखा है। हम लोग साउथ एशियन में आते हैं। हम सब आर एट हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज। क्यों? मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, इसका जवाब किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमने देखा है कि जो लोग इन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं उनके अंदर डायबिटीज की जो परसेंटेज है इट्स वेरी हाई। दूसरा कारण जो हो सकता है या रिस्क फैक्टर जो है वो है हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। ये सिर्फ औरतों में ही लागू हो सकता है बिकॉज औरतें गेट प्रेग्नेंट, और अगर प्रेगनेंसी में उनको डायबिटीज होती है तो दे आर एट हाई रिस्क। फैमिली हिस्ट्री, हम में से हर एक का कोई ना कोई ब्लड रिलेटिव, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामू, फुप्पो, खाला, जो भी है ब्लड रिलेटिव, नॉट खाला का हस्बैंड, बिकॉज खाला का हस्बैंड इज नॉट अवर ब्लड रिलेटिव, बट यस जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स के भाई बहन और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनको अगर डायबिटीज है तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री विच इज अ रिस्क फैक्टर दैट आई कैन नॉट कंट्रोल। मतलब मेरे अम्मी पापा को अगर डायबिटीज है तो आई डिड नॉट डिसाइड टू बॉर्न इन देयर फैमिली, मैं तो हूँ उनकी बेटी, राइट? तो मेरी रिस्क फैक्टर एक बढ़ गया। हैव अदर कंडीशंस लिंक्ड टू डायबिटीज, सो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे लोगों को जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, उनसे आपका लीड हो जाता है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था हर्षा, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो लिंक करता है डायबिटीज को। कुछ ऐसे भी आप लोगों ने केस सुने होंगे कि उनको हार्ट अटैक आया, जब वो हॉस्पिटल गए, हार्ट का तो इलाज हो गया, वापसी में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर डायबिटीज लेकर आए वो, कि वो जी मेरा बाईपास सर्जरी हुई थी, मेरा जब सारे टेस्ट हुए तो डायबिटीज भी निकल आई। तो आइदर बिकॉज इट वाज ऑलरेडी देयर वी डिड नॉट राइट, और इट वाज नॉट देयर बट बिकॉज ऑफ द शॉक दैट बॉडी गोज इन, डायबिटीज हो गई। ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके लिए हमारा कोई कसूर नहीं था पर वो हो गए हमारे साथ। अब बात करते हैं गुड न्यूज की, वो चीजें जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर मैंने लगाई है ना, ये आंटी हर एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स को। चिप्स खा रही है, बैठ के टीवी देख रही है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, वजन भी काफी ज्यादा लग रहा है इनका, तो बॉडी वेट है, और क्या पता ये जो स्ट्रेस में इतना बार बार चिप्स खा रही है तो शायद इसको स्ट्रेस भी होगी। तो ये चारों कारण ऐसे हैं जो कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो कोशिश करें कि हम अनहेल्दी ईटिंग ना करें, हम चाहें तो कोशिश करें कि इनएक्टिव ना रहें, वॉकिंग, अभी आप लोगों ने योगा किया, यू गाइस आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि ठीक है घर से नहीं निकल सकते मगर ऐसे हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जहां पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप किसी और को जानते हैं तो प्लीज उन सबको भी बोलें कि ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि दिस सच अ गुड वे और प्लेटफॉर्म ऑफ बीइंग एक्टिव। बॉडी वेट, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वजन बढ़ रहा है तो उसको कोशिश करें कम करें। अगर हम हेल्दी खाएंगे और एक्टिव रहेंगे हर वक्त,
वी कैन वर्क विद अवर बॉडी वेट. स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं बोलूं कि ओ कल सुबह से स्ट्रेस लेना बंद कर दो और आप कहेंगे जी अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता. अच्छा अंबर जी, पेरेंट्स को हो डायबिटीज लेकिन अपन के हेल्दी लाइफस्टाइल हो और फिर ज्यादातर वो स्वीट नहीं खाते हो और स्ट्रेस नहीं हो तो मैनेज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, आई नो स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर. हमें क्या करना होता है इस सिचुएशन में, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सोना भी नहीं मिल रहा, वी कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, स्ट्रेस ज्यादा है. लेकिन अगर हम बाकी 3 चीजों को स्ट्रांगली करेंगे ना, तो होपफुली हम अपनी डायबिटीज को डिले कर सकते हैं, धक्का मार के हम दूर कर सकते हैं. स्ट्रेस को दूर करने का तरीका क्या है, इसके लिए मैं तो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए जो एक्सपर्ट स्टॉक होती हैं, जैसे वो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, उन स्ट्रेटेजीज पे काम करें कि सॉल्यूशन सीकिंग के. देखो मैं बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकती, पर मैं छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. समटाइम्स एक छोटी सी एग्जांपल है, न्यू इमिग्रेंट फैमिली है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, राइट? तो इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस. जॉब नहीं है, पैसा नहीं होगा, कैसे करेंगे? लेकिन अगर वो उसको ब्रेक डाउन करें, फाइंड सॉल्यूशंस, मे बी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को ज्वाइन करें, कोई छोटी जॉब कर लें until the time being, just try to work around it. Positive thinking के साथ definitely it's a very big one, पूरा सेशन निकल जाएगा. लेकिन stress is something we can try to control. It's not something I say कि it cannot be controlled. तभी मैंने इसको पीछे नहीं लिखा, मैंने इसको यही लिखा है कि अगर हम चाहें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन, people who have diabetes can feel normal as if nothing is wrong with them, or if nothing is wrong. जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको सब कुछ नॉर्मल फील होता है कि कुछ भी गलत सही नहीं है, मेरे साथ में एकदम नॉर्मल हूँ. सही है गलत? सही सही, ट्रू. वेरी गुड, गुड जॉब. वाकई को डायबिटीज बुखार नहीं होता. डायबिटीज में कोई ऐसा नहीं होता कि मेरा जिस्म गर्म हो जाएगा या मेरी आंखें चढ़ जाएंगी, बिल्कुल नहीं है. लेकिन हाँ, जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना डायबिटीज, ब्लड शुगर, तो प्रॉब्लम शुरू होती है. जैसे हाइपरग्लाइसीमिया का वर्ड हम यूज करते हैं. हाइपर मतलब ज्यादा, शुगर, ईमिया मतलब ब्लड. जब ब्लड में शुगर ज्यादा होती है तो मुझे प्यास बहुत लगेगी, मुझे वीकनेस होगी. आप सोचे ना कि वो एनर्जी नहीं बन रही है, सेल के अंदर तो शुगर है ही नहीं, तो मुझे वीकनेस होगी, मैं डाउन फील करूंगी. हो सकता है मुझे सोचने और फोकस ऑफ अटेंशन में ना कर सकूं. बहुत कुछ चल रहा होगा मेरी लाइफ में. और कभी और फिर प्यास लगती है, पानी पीती हूँ तो यूरिन करती हूँ, तो ये बहुत ही डिस्कम्फर्ट होती है, वो भी वेरी हाई ब्लड शुगर में. लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे एक क्लोज रिलेटिव में, फैमिली में ही एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनका बीपी का वो रेगुलर चेकअप करवाते थे और जहां भी क्लिनिक पे जाते थे उसने कहा था कि हर महीने आपने विजिट करना है क्लिनिक को. तो जब वो जाते थे 6 महीने के बाद उसने वैसे ही कहा कि आप एक ओवरऑल अपनी बॉडी का चेकअप करवा लो. तो उसमें करवाया तो उसमें शुगर लेवल का भी करवा लिया. तो एकदम से उसने हमें डरा दिया कि इसको तो बड़ी हाई वो शुगर का प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और सारा कुछ ठीक है. तो आप जब कहते हैं, हाँ, तो ये कैसे हो गया? इसलिए कि उनकी बॉडी यूज टू हो गई हाई ब्लड शुगर के. क्योंकि ये जो प्यास वाला सिम्टम है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना, कि मेरी बॉडी ने सेंस किया हाई ब्लड शुगर को और मुझे सिग्नल दिए कि भाई ब्लड शुगर नहीं, बीपी की प्रॉब्लम थी. आई नो, लेकिन उनको फाइंड आउट हुआ कि उनके ब्लड शुगर्स भी हाई हैं, मगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे. राइट, आप यही कह रही है ना, यही स्टोरी है ना? हाँ. तो ये ऐसा होता है कि हाई, कुछ बॉडीज जो है, कुछ लोग जो हैं, उनको फील ही नहीं होता कोई सिम्टम. ये बिल्कुल व्हेन ब्लड शुगर्स आर हाई, ये सारे सिम्टम्स हैं यहाँ पर. और वी फील डिफरेंट और वी फील नथिंग. इसीलिए ये बहुत अच्छी आप एग्जाम्पल लेकर आई हैं कमलजीत. क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग तो बहुत लकी होते हैं कि उनको ये सब फील हो गया, उन्होंने कहा डॉक्टर के पास चले गए कि भाई पता नहीं क्यों मेरा ब्लडी विजन हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रोज भूख लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे थकन महसूस हो रही है. दे आर लकी पीपल. जो आपके रिलेटिव थे वो बेचारे अगर ब्लड प्रेशर की वजह से ना जाते तो उन्हें तो पता ही नहीं चलता उनकी शुगर इतनी हाई है. Exactly, हाँ. तो ऐसे लोगों के लिए जो मैं आज का ये सेशन लेकर आई थी, बेसिकली वो मेरा यही रीजन था कि मैं जो हूँ वो बात करना, सॉरी ये, हाँ,
मैं ये बात करना चाहती थी कि इसीलिए ये वाली अब स्लाइड आ गई और एग्जैक्टली हमारा राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन आया कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ डू आई नो आई हैव डायबिटीज, क्योंकि मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है इनमें से। इसीलिए हम सब लोगों को, ऑल ऑफ अस, आप, मैं, बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इतनी एज होनी चाहिए या इतना आपकी बीमारियां होनी चाहिए या आपकी फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, बल्कि हम सबको एटलीस्ट साल में एक दफा अपना ब्लड वर्क कराना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे अंग्रेजी में, मैं एक एक करके सारे पढ़ती हूँ, आप लोगों को उसका मतलब भी समझाती जाती हूँ। ये कहते हैं कि सी योर फैमिली डॉक्टर और नर्स प्रैक्टिशनर एटलीस्ट टू गेट द ब्लड वर्क डन। ठीक है, अभी इसमें टाइमलाइन नेक्स्ट वाले पॉइंट में है, तो आपने उनको देखना है ब्लड वर्क कराने के लिए, एक दफा साल में वैसे कराना होता है, आगे आ जाएगा ये पॉइंट। कैन नॉट रिलाई ऑन सिम्टम्स, सिर्फ अपने सिम्टम्स पर मत भरोसा करें। 40 साल के बाद कहते हैं कि हर 3 साल में, और जिनका कोई रिस्क फैक्टर है वो हर 6 या 12 महीने में। तो हम सब कौन है? साउथ एशियन। हमें सबको करा लेना चाहिए हर 6 या 12 महीने में ब्लड वर्क। और उसमें ये हमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ब्लड शुगर का टेस्ट है, वो है A1C टेस्ट। ठीक है, A1C टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि डायबिटीज है कि नहीं है। ठीक है, तो हर बंदे को, जो अभी हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को अगर हमारे रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैं साउथ एशियन हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा मेरी फैमिली में हाई हिस्ट्री है डायबिटीज की, ठीक है, नंबर 2। और इसके अलावा जो मतलब ये है कि मतलब ठीक है, मैं अगर बाकी चीजों को कंट्रोल कर लूँ, लेकिन ये 2 रिस्क फैक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मुझे चाहिए कि मैं एटलीस्ट साल में एक दफा, नहीं तो 2 दफा अगर कर सकूं तो बहुत ही अच्छी बात है, अपना ब्लड वर्क कराऊं और अपने A1C को टेस्ट कराऊं। अच्छा, एक और तरीका भी है, जैसे आप लोग अक्सर सोच रहे होंगे कि अंबर ने अपना तो कैलकुलेट कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर एट रिस्क और नॉट। ये हैंडआउट है, और इस हैंडआउट में इन्होंने वो हर सारे पॉइंट्स लिखे हुए जो मैंने अब तक बताए थे, और वो उनको सिंपल चेक मार्क करना है। ये हैंडआउट इजीली मौजूद है ऑनलाइन, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आपको ईमेल भी मैं करवा दूंगी, उसमें आपको भेज के उसमें आपको भेज देंगी। ये आर यू एट रिस्क का हैंडआउट है, और इसमें सारे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मुझे बताएंगे कि मेरा रिस्क हाई है कि नहीं है। आई हैव अ पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर विद डायबिटीज, यस मिस। I am a member of high risk group, South Asian, yes miss. I have health complications that are associated with diabetes. You don't need to share that with us. हो सकता है मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, yes. I have given a birth to baby that weighed over 4 kg, यानी 9 पाउंड से भारी बच्चा आपने जन्म दिया। या दूसरा पॉइंट है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुई, ये दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के, ठीक है ना। आई हैव बीन टोल्ड आई हैव प्री डायबिटीज, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको प्री डायबिटीज है, दैट्स एक्चुअली अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। आई हैव हाई ब्लड प्रेशर, आई हैव हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, and I am overweight, especially I carry more weight around my belly. कट गया है ये, जब मैं आपको ईमेल करूंगी तो मैं पूरा हैंड आउट करूंगी। तो ये सारी चीजों में से अगर हमें लगता है कि हम में से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, आप इतना अपने आप को मुश्किल ना रखें। अगर लगते हैं कि भाई बहुत सारे रिस्क फैक्टर मैं चेक मार्क कर रही हूँ, तो मुझे A1C टेस्टिंग करानी चाहिए। अब A1C का थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बताती हूँ, फिर हम नंबर्स पे आएंगे, नंबर्स कंफ्यूज कर देते हैं अदरवाइज। अच्छा अंबर जी, पीसीओडी का है, वो भी शुगर में आता है ना? क्या चीज? पीसीओडी, ये क्या होता है पीसीओडी? वो शुगर का होता है कि लेवल हाई हो जाता है। आई थिंक आप कहना चाह रही हैं पोस्ट पीसीओएस, आप कहना चाह रही हैं? पीसीओएस, हाँ पीसीओएस, हाँ पीसीओएस इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा देखिए, अब जो नई रिसर्च आई है ना, उसमें ये नहीं है, लेकिन यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। जब हम आज से, इवन मेरा ख्याल है कि जो पिछली गाइडलाइंस थी 2015 की थी आई गेस, उनमें पीसीओएस इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, एक और चीज, जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिन वुमेन को उनकी बेली बढ़ जाती है और उनका वेट लॉस नहीं होता, तो पीसीओएस कॉजेज 2 मेन थिंग्स, दैट कॉजेज डायबिटीज। पीसीओएस डायबिटीज नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है। तो अब मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग से आपको फैक्ट बताती हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड, उनको पीसीओएस डायग्नोस हो गया एकदम,
अच्छा, उसने बस ये कोशिश करी कि उसने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि लोग यही समझते थे पीसीओएस हो गया तो अब डायबिटीज हो जाएगी। हाँ उसने वेट को भी कंट्रोल रखा, बेली को भी नहीं बढ़ने दिया। जब उसने वेट लूज किया तो उसका पीसीओएस भी काइंड ऑफ फिक्स हो गया, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स पे थी, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका चांस ऑफ डायबिटीज भी खत्म हो गया क्योंकि उसने वेट लॉस कर लिया। एक्चुअली उन्होंने कोई 10 to 20% ऑफ देयर बॉडी वेट उन्होंने लूज किया, विच वॉज अमेजिंग। तो ये कनेक्शन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं अब बात करना चाहूंगी हीमोग्लोबिन A1C क्या होता है पहले, और फिर मैं बात करूंगी इसकी इंपॉर्टेंस पर। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नाम सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन, राइट? रेड ब्लड सेल्स होते हैं गोल गोल, ठीक है। नेचुरली गॉड ने ऐसा बनाया है कि हर रेड ब्लड सेल के ऊपर एक टेंडेंसी है कि शुगर आके अटैच हो जाती है, बस चिपकी भी होती है उसके ऊपर, ठीक है। अब वो क्या है कि वो एक सर्टेन परसेंटेज में होगी तो इट्स ओके, अगर वो परसेंटेज ज्यादा हो गई, बहुत सारी शुगर अटैच हो गई, तो इट्स नॉट ओके। ऐसा होगा क्यों? वो तब होगा कि जब मैं नॉर्मल खाना खाती थी लेकिन मेरे जिस्म में इंसुलिन इनफ नहीं होती थी, तो वो सेल के अंदर नहीं जाती थी, तो वो जो शुगर थी वो मेरी बॉडी के अंदर डांस करती फिरती थी, घूमती फिरती थी, उसके पास कोई काम नहीं था सिवाय के सेल के साथ HBO जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाए। तो वो ज्यादा अटैच हो गई। अब क्या हुआ, मेरा A1C हाई हो गया, मेरा जो खून है, ब्लड है, वो शुगरी हो गया, जो मेरा ब्लड है वो अब एक सिरपी ब्लड हो गया। अब वो पहले जो शू शू मेरी आर्टरीज में घूमता था, अब वो बहुत धीरे धीरे चलता है क्योंकि वो बहुत थिक हो गया है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा शुगर इन द ब्लड। और ये मैं बिल्कुल भी फिक्शन नहीं बोल रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाई A1C की वजह से ब्लड इज लाइक अ सिरपी ब्लड, और उसी वजह से जिन लोगों की शुगर्स बहुत हाई होती हैं, अनकंट्रोल होता है, उन लोगों ने कभी आप लोगों से शेयर किया होगा कि मुझे हाथों और पैरों में सनसनाहट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाँव सुन हो गए, मैं सीधी बैठी हूँ मुझे फिर भी पाँव सुन हो जाते हैं मेरे, क्योंकि उनके नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो सिरपी ब्लड है वो उनके नर्व्स को डैमेज करता है, उनके पाँव तक सर्कुलेशन नहीं पहुंचती है, खून ही नहीं पहुंच पाता बेचारा, तो क्या पैरों का जख्म नहीं भरता उनका, छोटी सी चोट लग जाती है वो बड़ा नासूर बन जाता है। ये इसलिए होता है कि उनका ब्लड इज लाइक अ सिरप, वो अपना काम ही नहीं कर पाता बेचारा। तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, दैट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारा A1C बहुत हाई आ रहा होगा। तो इसीलिए जब हमारी डायबिटीज का नाम आता है, A1C टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नंबर्स की बात करते हैं। A1C अगर 5.4 से कम होगा तो एक्सेलेंट है, आप बहुत अच्छे हैप्पी ग्रीन जोन में हैं, इसका मतलब है नो डायबिटीज, ठीक है। अगर वो नंबर 5.5 से 9 में आ गया तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ऑरेंज जोन में आ गए, मैं ये बोलूंगी आप ग्रीन से निकलना शुरू हो गए, आप काइंड ऑफ येलो जोन में आना शुरू हो चुके हैं। अब हमने अपना नया जोन बना लिया, वो येलो है जोन, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि वो जो 5 से 5.9 की A1C है ना, वहां पे हमें थोड़ा खतरा करीब हो रहा है हमारे, एट रिस्क। 6 से 6.4 के दरमियान प्री डायबिटीज, 6.5 एंड अबव टाइप 2 डायबिटीज, जहां पे रेड जोन आ गया। प्री डायबिटीज ऑरेंज है, टाइप 2 रेड है। ऑरेंज में अगर हम हैं वी कैन गो बैक टू ग्रीन जोन, रेड में अगर हम हैं तो हम साइकिल चेंज नहीं करते लेकिन हम गुड कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये नंबर चेंज हो सकते हैं? यस। मेरा A1C 8.5 था, मैंने डाइट एक्सरसाइज मेडिकेशन की, मेरा A1C 3 महीने में 5.5 हो जाएगा। हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत मेहनत करी मैंने, दवाइयां खाई मैंने, सब कुछ करा, फिर क्या हुआ? क्या आप बोलोगी कि अंबर को डायबिटीज नहीं है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने दवाइयों से, अपने खाने पीने से, अपने एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल किया था। मगर मेरी पैंक्रियाज वैसी की वैसी ही है बेचारी, वो इंसुलिन नहीं बना रही है, तो मेरे टाइप 2 डायबिटीज तो रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगी मेरा A1C 5.5 है, वेरी वेल कंट्रोल, गुड जॉब, 3 स्टार्स ऑन माई शोल्डर। तो ये नंबर चेंज हो जाता है। और इसी तरह से अगर किसी का A1C 5.5 है और वो हैप्पी डांस कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनका A1C भी 8.5 हो सकता है, क्योंकि हर 3 महीने में हमारा पुराना हीमोग्लोबिन मर जाता है, नया हीमोग्लोबिन जन्म लेता है, और जो सेल्स हमारे शुगर के घूम रहे होते हैं
वो उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। बहुत ही ऑटोमेटिक सा नेचुरल सिस्टम है ये, और इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। हम इसको अपने खाने पीने से कंट्रोल करेंगे, शुगर लेवल लो रखेंगे, लेकिन हम इसको एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। जब आप लोग हर 6 महीने में ब्लड वर्क के लिए जाते हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है बट हाई रिस्क है, उनका A1C टेस्ट होता है और उनका फास्टिंग या रैंडम ब्लड ग्लूकोज होता है। A1C अगर आपका 5.5 से कम है, एक्सीलेंट, वंडरफुल, अमेजिंग। 5.5 से 5.9 के दरमियान है, थोड़ा डरिए, थोड़ा अगली दफा उसको नीचे लाने की कोशिश करें। और अगर प्री में है तो भी सेम रिकमेंडेशन है। टाइप 2 में अगर आ गए हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर, डायबिटीज एजुकेटर से मिलें, उसको भी नीचे लाने की कोशिश करें। अगर HbA1c 7 से ऊपर है तो दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ती हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नहीं है। ओके, अच्छा। इम्पोर्टेंस आपकी, अगर A1C हमारा टारगेट पे रहेगा 6.5 से 7 के दरमियान, तो हमारे जो चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशंस के वो रिड्यूस होंगे, कम होंगे। तो हमें यही गुड न्यूज चाहिए, ठीक है ना। अबव होगा तो हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है। गीता जी अपना म्यूट कर देंगी प्लीज। आवाज आती। थैंक यू। तो जो A1C अबव 7 होगा, इट्स अ हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। लेस देन 7 होगा, इट्स अ वेल कंट्रोल डायबिटीज। और अगर 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12 है, यानी कि बहुत हाई है, तो इसका मतलब हमारी डायबिटीज इज नॉट मैनेज्ड वेल। और इसका मतलब है कि अब जो डायबिटीज है वो मेरे हर जगह पर, इवन मैं एक एग्जांपल यूज करती हूँ, मैंने आप लोगों से भी यूज की है कि हेड टू टो, पैर के नाखून तक, सर के बाल से लेके असर करेगा। तो ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा कर्सर, स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि जब शुगर हाई होती है तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, रुक जाता है, उसमें रुकावट आती है, और उसकी वजह से ब्रेन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना छोटा मोटा मजा। ब्रेन इज अवर हेड ऑफिस, इट्स वेरी सेंसिटिव। फिर आ जाते हैं हार्ट पे, ब्रेन के नीचे आंख पे जाते हैं, पहले आंख आती है, आंखों के पीछे हमारे बहुत बारीक नेटवर्क है, वो इम्पैक्ट हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं हार्ट के ऊपर, कार्डियोमायोपैथी का वर्ड यूज करते हैं, आसान लफ्जों में हार्ट अटैक आ सकता है। फिर आ जाते हैं हम किडनीज के ऊपर। किडनीज उदास हो जाती हैं जब ब्लड शुगर हाई होती है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाते, फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाते, और उनके जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। जैसे डैमेज की मैंने बात करी, वो जो फिल्टर्स होते हैं जिनको ग्लोमेरुलाइज कहते हैं हमारी जबान में, वो इम्पैक्ट होते हैं। और साथ साथ एक और चीज होती है, हमारे नर्व्स। पूरे जिस्म में ना एक छोटे 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 सेल्स हैं जो सारे सेंसिटिविटी का काम कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी हमारे नर्व्स भी डैमेज करना शुरू कर देता है। जब नर्व्स डैमेज होते हैं तो हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज मतलब मेरे हाथ और मेरे पाँव, इन तक जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता, तो जिसकी वजह से वहां पे सेंसेशन कम होने लगती है, जो आप लोगों को महसूस होता है, चींटियां चल रही हैं, सुन हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन होता है कुछ लोगों को। पैरों में जब सनसनाहट कम हो जाती है और कोई जख्म लग जाए, वो भरता नहीं है। अक्सर आप लोग खराब जूता पहन लेते हैं तो आपके पैरों में छोटे छोटे जैसे छाला पड़ गया, कोई वॉट पड़ गया, या कोई हल्का सा बनियन सा बन गया, हम कोई दूसरा जूता पहनते हैं, सब ठीक हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट अगर ऐसा कर ले कभी गलती से, वो उनका जख्म, अगर उनकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है तो वो जख्म खराब हो जाता है। तो इसीलिए जिन लोगों को भी शुगर है, उन लोगों को जूता बहुत अच्छा नरम पहनना चाहिए, अपने पैरों के हिसाब से पहनना चाहिए, और उनको अपने पैरों का चेकअप रोज करना चाहिए, ताकि अगर कोई छोटी सी भी जख्म है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको राइट अवे ट्रीट करें। अच्छा, इचिंग होता है क्या? डायबिटीज में इचिंग होती है? ड्राई स्किन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ड्राई स्किन, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो पानी को लेके पेशाब के रास्ते शुगर से गेट रिड होने की कोशिश कर रही होती है। तो कुछ लोगों को प्यास लगती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है, लेकिन बहुत क्लासिक सिम्टम नहीं है इचिंग। कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है इचिंग। इचिंग बहुत ज्यादा, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन।
हाँ, ये these are burning sensation is a classic symptom of high blood sugars. Itching could be at the dry skin and dry skin can be because of high blood sugars. थोड़ा सा दूर का रिश्ता है पर है। अंबर एक बात पूछती थी, वो ये कि वो शुगर में पाँव की तलियां भी जलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बर्निंग होती है पाँव के बिल्कुल नीचे जो है। हाँ जी। बिल्कुल जैसे जो उंगली के पास का, टोस के पास का जो एरिया होता है वहां, और समटाइम्स लोग कंप्लेन करते हैं हील में, क्योंकि वहां पे जब हम चलते हैं ना तो हमारा सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं पर होता है। तो उधर अगर प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो रही हो, ब्लड फ्लो अच्छा ना हो, तो वहां पे बर्निंग होने लगती है। सही। तो कुछ लोग बेचारे मोजे पहन रहे होते हैं, कुछ लोग मोजे उतार के फेंक देते हैं। मगर इसका बेस्ट यही है कि डेफिनेटली मैं अपना A1C टेस्ट कराऊंगी, मैं अपने डॉक्टर से बात करूंगी। और एक और होता है शिरोपोडिस्ट, पैरों का डॉक्टर, उसको भी दिखाया जा सकता है। कभी कभी मैंने जो इनसे बात करती हूँ, नर्सेस से मैं पूछती रहती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि समटाइम्स पैर के नीचे ना अगर एक गोल जो हमारी टेनिस बॉल नहीं होती है वो रखिए, वो कहते हैं कि पैर को जो है ना उसके ऊपर ऐसे घुमाओ, उससे पैर के अंदर सर्कुलेशन होती है। तो ठीक है, हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारे ब्लड नीचे नहीं जा रहा, पर जो ब्लड यहाँ मौजूद है मैं उसको तो अच्छे से सर्कुलेट करूं। तो वो हमेशा ये एडवाइस करती थी क्लाइंट्स को, आप लोगों को, कि टीवी भी देख रहे हैं ना तो डॉलर स्टोर से जाके बॉल ले आइए और पैरों के नीचे बॉल रख के उसको ऐसे बस गोल गोल घुमाते रहें। दिन में जितनी दफा हो सके करें, कोई लिमिट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है फॉर दैट पर्टिकुलर सिम्टम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो अभी तो इतनी सारी मैंने बैड न्यूज दिखाई कि ये इतना करता है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि A1C को रिवर्स किया जा सकता है, और रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज है, फीलिंग गुड एंड लिव हेल्दी विद डायबिटीज है, उसमें सबसे पहले आ जाता है राइट कॉर्नर पर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए, आप लोगों को भी पता है, बहुत लंबी लंबी बातें कर चुके हैं इस पर। हफ्ते में कोशिश करें थोड़ा कार्डियो हो जाए, 20 मिनट की वॉक हो जाए, कभी कभी थोड़ी वेट रेजिस्टेंस फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज योगा है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बॉडी वेट के साथ ना, जैसे सिंपल अपने हाथ को उठा के बस ऐसे करना, जिसमें हमारे मसल्स थोड़े यूज हो, थोड़ी कंटिन्यूस मूवमेंट, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करना, लेकिन अपने मसल्स को यूज करना। डाइटरी मॉडिफिकेशन, जितनी बात करें कम है, बहुत लंबी बातें कर चुके हैं, और डेफिनेटली आई एम ओपन टू टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम। हेल्दी ईटिंग इसका आंसर है, और हेल्दी ईटिंग होती है, डायबिटिक डाइट नहीं होती है। देयर इज नो डायबिटिक डाइट, देयर इज हेल्दी ईटिंग। तो आपने हेल्दी खाना खाना है, 3 टाइम खाना है, बैलेंस मील्स खाने हैं, अपने खाने में कोशिश करनी है रंग बिरंगी सब्जियां हों, अगर प्रोटीन भी है तो अगर एक दिन चिकन है तो एक दिन दाल है, फिर बीन्स हैं, फिर टोफू है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स खाइए। प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग नॉन वेज भी ले सकते हैं, चिकन है फिश ले सकते हैं वो लोग। ठीक है, एक बात पूछनी थी मेरे को। मैं अभी इंडिया गई थी, भारत में गई थी, तो वहाँ मेरी 2 दवाइयां चल रही हैं। एक तो मेटाफॉर्मिन चल रही है और एक दूसरी का नाम मुझे याद नहीं है। एक मेटाफॉर्मिन और वो वाली दवाई सुबह लेती हूँ, और एक मेटाफॉर्मिन और वो वाली दवाई शाम को लेती हूँ। एक रूटीन है मेरा मेडिकली। लेकिन जब मैं इंडिया गई तो वहां पर जाके काम का कुछ स्ट्रेस ऐसा था या कुछ भी था, मेरा वो भूल गई, मैं सुबेरे ही ले पाती थी और शाम को भूल गई। 3 महीने के बाद मैं आई हूँ इधर। 3 महीने बराबर मैंने शुगर देखा तो शुगर लेवल मेरा वही की वही रहा। और जबकि वहां पर मेरे को क्या हो गया कि काम बहुत होता था, इतना समय नहीं मिलता था। मैंने जहां मिला चीनी भी खाई और गुड़ भी खाया और दुनिया भर की सारी चीजें खाई, अच्छी बुरी, कुछ भी वैसा की वैसा मेरा शुगर रहा, और शुगर एकदम ठीक सा हो गया। और अब मैं यहाँ पर आके भी मैं वैसी खा रही हूँ, डोज कम हो गई अपने आप ही, और शुगर लेवल मेरा वैसे की वैसा रहा। 6 पॉइंट सब समथिंग तो वही रहा जो यहाँ था। अब मैं सोच रही हूँ मैं डबल डोज करूँ कि वो ही रहने दूं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है। नहीं, मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरे लिए इसके लिए मैं जो शुगर का डॉक्टर है, मेरा अपॉइंटमेंट उससे बुक करा दूं। कहता है इतनी जल्दी तो होगा नहीं मम्मा, छोड़ो छोड़ो। अब मैं उसको ये वाली बात अगर बोलूंगी ना कि मैंने 2 महीने 3 महीने बाद दवाई नहीं खाई, तो उसने तो मेरी क्लास ले लेनी है। नहीं नहीं, क्यों लेंगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो होना था वो हो गया। गुड न्यूज ये है कि आपकी डायबिटीज वेल अंडर कंट्रोल है। अच्छा, आपने लैब कराई है ना, लैब से ब्लड वर्क कराया ना, आप घर के टेस्टिंग की तो बात नहीं कर रही ना?
अभी जो 3 महीने की जो आई है वो ठीक आई है। हाँ बस ठीक है। तो डॉक्टर को क्या है लेना देना, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, आप अपॉइंटमेंट बनवा लें उनसे, क्योंकि उनको तो वैसे भी 3 महीने 6 महीने में देखना होता है। और जब आपको जबकि भी अपॉइंटमेंट मिले, आज के 2 महीने बाद की मिले, तो मेरा मशवरा है कि एक और रीसेंट ब्लड वर्क करा लीजिएगा। देखिए जो होना था वो तो हो गया, आप गई, बहुत है, थैंक्स टू गॉड कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपके ब्लड शुगर्स में, तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, आज की कहानी क्या है, हम अपना दोबारा ब्लड वर्क कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर हमारा ब्लड वर्क नॉर्मल होगा तो मेरी असेसमेंट ये है कि आपको दवा की फिलहाल जरूरत नहीं है, आपसे वो जो एक सुबह की गोली थी वही खाती रहिए। और अगर कल ही आई है रिपोर्ट, मेरी कल ही आई है। हाँ, कल और ही अगर रिपोर्ट आई है, ठीक है। हाँ तो A1C अगर हाई होगा तो हम स्टार्ट कर देंगे, अगर हाई नहीं है और पिछले 3 महीने से मैंने बिना गोली के रखा है। और मैं वैसे आपको एक बात बता दूं, जो एक गोली मेटफॉर्मिन की है ना, वो कुछ ज्यादा काम नहीं करती है। मेटफॉर्मिन का जो मैक्सिमम एफिकेसी है ना, जो हमें इसका सबसे बेहतरीन असर मिलता है, वो 2 सुबह और 2 शाम से मिलता है। मेटफॉर्मिन का 1000 मिलीग्राम सुबह, 1000 मिलीग्राम शाम को खाने से फायदा होता है। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप सिर्फ 500 मिलीग्राम खाती थी, तो आप तो वैसे ही चौथाई गोली खाती थी। तो आप खाएं ना खाएं, और क्लियरली आपकी बॉडी ने आपको बता दिया कि तू मुझे खा या ना खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है। वी विल मॉनिटर क्लोजली, डॉक्टर को भी दिखाएंगे, उनसे भी मशवरा लेंगे। आई पर्सनली थिंक एक गोली मेटफॉर्मिन से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना खाएं, आपको साइकोलॉजिकली अच्छा फील हो रहा होगा कि मेरी गोली कम हो गई। हाँ, मगर बहुत वो अच्छा सुबह लग रहा वाली है। गोली है, क्लियरली वो आपको हेल्प ज्यादा कर रही है। जो भी उसका नाम था, उसका नाम जार्डियंस या इन्वो कहना तो नहीं है, जार्डियस या हो सकता है, हाँ। जार्डियंस बहुत अच्छी दवा है, तो जार्डियंस आप लेती रहिए रोज सुबह में, और मेटफॉर्मिन नहीं खानी है तो मत खाएं, कोई बात नहीं। मुझे तो जानुमेट देते हैं। जेन्यूमेट डिफरेंट दवा है, हर बंदे की डिफरेंट दवाई होती है आंटी। तो जेन्यूमेट आपको एक सुबह और एक शाम को खानी होती होगी, उसमें मेटफॉर्मिन है। और अगर आप उसको पढ़ेंगी तो उसमें 1000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन सुबह में और 50 मिलीग्राम जेनोविया, तो जेन्यूमेट। और वही जेन्यूमेट आप रात में भी खाती है, तो आपके केस में बिल्कुल परफेक्ट बात है कि मेटफॉर्मिन कम से कम 2000 होगी तो फायदा होगा। अच्छा, जब मेटफॉर्मिन 500 देते हैं, आपकी जेन्यूमेट के अंदर 500 है, 50/500 है। उसके मेटफॉर्मिन 500 है। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जेन्यूमेट के ऊपर आपके क्या लिखा हुआ है, 50/1000 या 50/500? पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, तो उस पे डिपेंड करता है कि मेटफॉर्मिन कितनी है। अगर 50/500 लिखा है तो 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन है, अगर 50/1000 लिखा है तो 1000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन। अच्छा, मोस्ट लाइकली 1000 होती है, मोस्ट लाइकली। बहुत कम होता है जिनको हम कम मेटफॉर्मिन देते हैं, जिनका मोस्टली कोई किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है ना, उनको कम देते हैं। तो दवाइयां ऑटोमेटिकली हमारी डिस्कशन में आ गई, थैंक्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। तो दवाइयां, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीनों चीजें हमारी बैलेंस्ड होंगी तो हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट एक परफेक्ट ट्रायंगल की तरह परफेक्ट होगी और बैलेंस होगा। और जिसके सेंटर में मैंने मॉनिटरिंग डाला है, जिसका मतलब है कि मैं हर 3 महीने बाद अपना ब्लड वर्क कराती हूँ, क्योंकि मुझे डायबिटीज है। मैं दवाई भी खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं मेडिकेशन भी लेती हूँ। प्रभा आंटी ने अपनी एग्जांपल दी हमें कि वो इंडिया में नहीं खा पाई, उनका जो भी रूटीन रहा, बिजी थी वो बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही आई उन्होंने फौरन ब्लड वर्क कराया। दैट्स अ वेरी गुड मॉनिटरिंग, क्योंकि हम वो नहीं करेंगे ना कि हम आंखें बंद कर लेंगे प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। प्रॉब्लम गायब नहीं होगी, प्रॉब्लम तो यही रहेगी। आप ब्लड वर्क कराइए, फेस इट, अगर वो गुड है तो हैप्पी डांस, वो बैड है तो लेट्स चेंज इट विद डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन। और ये एक छोटा सा जोक, डाइट के साथ ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो शुगर का पेशेंट है उसको कई लोग कहते हैं, कई सुनी बातें हैं, तो वो कहते हैं कि हर 2 घंटे के बाद उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाना चाहिए इन बिटवीन द मील्स। तो हाउ फार इट इज ट्रू और मिथ है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब आप लोगों में से किसी को देना चाहिए। और मुझे पता है कमलजीत आंटी को भी इसका जवाब पता है। देखें, वही बात है कि I wanted to be sure from the expert opinion. नो, मुझे मजा आता है। अब आप लोगों से इतना 12 महीने का रिश्ता है तो मैं थोड़ा बहुत तो तंग कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार मेरे सामने आता है। और ये सवाल मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो आपसे ये बात बोल रहा होता है ना, वो अपने सर के ऊपर जो है ना बहुत
फिलोसफी की टोपी पहनकर आता है लोग और कहते हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, 8-2 घंटे पे खाना खाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पुरानी थ्योरी थी। डायबिटीज में हमें हमेशा ऐसा लगता था कि बॉडी को अगर हम खाना देंगे तो बॉडी ओवरलोड हो जाएगी और फिर बॉडी को जो है ना शुगर को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये थ्योरी थी आज से, जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना, मतलब 20-25 साल पहले की बात है ये। अब क्या कहते हैं हम लोग, हम ये कहते हैं कि भाई बैलेंस खाना खाओ, ठीक है ना, और एक टाइम पे खाओ और फिर बॉडी को पूरे 5 घंटे का वक्फा दो, फिर दूसरा खाना खाओ, फिर 5 से 6 घंटे का वक्फा दो और फिर तीसरा खाना खाओ। और वो जो खाना होगा उस खाने में हमने ये बात सोची जो उस वक्त हमारे दिमागों में आई थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल ही रखेंगे, हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हम लो जीआई के कार्ब्स खाएंगे, यानी कि जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगी तो वो धीरे 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 रिलीज होंगे, हम प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, हम वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे। तो जो हमारा ओवरऑल पूरा खाना होगा वो हमारा खाना जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारे ब्लड शुगर के ऊपर। तो 5 घंटे का टाइम चाहिए 2 खानों में, दूसरे फिर इस तरह से 4 से 6 घंटे वो लोग कहते हैं, मैं 5 घंटे एवरेज कहती हूँ। अच्छा, अब फिर भी लोग कहते हैं कि अरे मेरा ना ऐसा लगता है मेरा दिल बैठने लगा 2 घंटे के बाद और मुझे कुछ होता है, मुझे कुछ खाना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है। अगर आपको एक स्नैकिंग करनी है इन बिटवीन तो आप हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि कम से कम 2-2.5 घंटे का वक्फा दें 2 खानों के बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट खाया, मैं 2-2.5 घंटे की विंडो दूंगी, मैं यहाँ एक स्नैक खाऊंगी और उसके 2-2.5 घंटे के बाद मैं लंच करूंगी, क्योंकि बीच में जो मुझे खाना है वो मैं इतना खाना खाऊंगी कि वो 2 घंटे में यूटिलाइज हो जाए, मेरी बॉडी उसको यूज कर ले। उसकी एग्जाम्पल है, आप कोई एक फ्रूट खा सकते हैं, मसलन अब वो फ्रूट चॉइस मैं जो समझाती थी आप लोगों को, जैसे एक एप्पल, एक पीच, पेयर, नॉर्मल साइज के फ्रूट द साइज ऑफ मेरी मुट्ठी, और फिर अगर अंगूर खाने हैं तो 8, मतलब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है हमें। कीवी खाने हैं तो 2, छोटे वाले जो ऑरेंजेस होते हैं क्लेमेंटाइन्स तो 2, बड़ा वाला ऑरेंज है तो 1, ग्रेप फ्रूट है और बड़ा आधा, अगर वाटरमेलन, मेलन, तरबूज, खरबूज और जितने भी सारे इस फैमिली के लोग हैं उनको काट के खाना है 1 कटोरी, ठीक है ना। तो फ्रूट खा लिया, एक चॉइस, दूसरा 1 गिलास दूध पी लिया, या आधी कटोरी दही खा लिया, या एक स्लाइस टोस्ट के ऊपर पीनट बटर लगा के खा लिया। तो ये सारे हेल्दी स्नैक्स आप लोग खा सकते हैं इन बिटवीन 2 मील्स 2.5 आवर्स आफ्टर। बट आइडियली एक ब्रेकफास्ट होगा, जो खाना जो हम सुबह सोकर उठ के खाते हैं, कोई लोग 6 बजे खाते हैं, कोई लोग 10 बजे खाते हैं, 5 घंटे बाद लंच और उसके 5 घंटे बाद डिनर। दैट्स आइडियल विद अ बैलेंस मील। तो ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। थ्योरी यही है कि 3 meals स्पेस्ड 4 to 6 hours बैलेंस मील्स। और ये जो खातून है जो यहाँ कार्टून बना हुआ है, ये कह रही है कि इनको किसी ने बोला है कि बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने कहा मैं इतना बैलेंस करूंगी। इसने एक तरफ रखा केक पेस्ट्री और उसको बैलेंस किया बहुत सारी चिकन और फ्राइज और बर्गर और पिज्जा और पाइज के साथ। तो क्या ये सही बैलेंसिंग कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला बैलेंस नहीं चाहिए हमें, वो वाला बैलेंस चाहिए जो अपनी नॉर्मल खाने की प्लेट के अंदर बैलेंसिंग करते हैं, राइट। तो वो वाला बैलेंस जो आप लोगों को पता है वो ये वाला बैलेंस। अरे वाह परवा आंटी, आपने जो सवाल पूछा, कमल आंटी ने पूछा, जो सवाल पूछा था वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। स्पेसिंग eat 3 meals every day spaced 4 to 6 hours, breakfast, lunch, dinner. वेरी गुड। देखा, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने ये स्लाइड इसमें डाली हुई है। और ये हेल्दी प्लेट है, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि भाई सब्जियां खाओ, आधा प्लेट सब्जी, रंग बिरंगी सब्जियां कोशिश करें खाएं। इतनी सारी एक टाइम पे कोई नहीं खा सकता। मतलब इसका सिर्फ यही है कि अगर आपने एक हरी सब्जी पकाई है तो थोड़ी कोई उसके साथ अलग कलर की सब्जी हो। हम लोग के कल्चर, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, हम तो पकाते हैं, हम गोभी, मटर, गाजर की सब्जी बनाते हैं, हम मेथी, मटर, आलू की सब्जी बनाते हैं, तो हम तो मिक्स बनाते ही हैं सब्जियां। जो ये वाला क्वार्टर वाला हिस्सा है आपकी प्लेट का, ये प्रोटीन्स है। जो नॉन वेज नहीं खाते प्लीज डोंट टेक इट ऑफेंसिव, ये तस्वीर इन्होंने बनाई है सब लोगों के लिए। तो जो नॉन वेज है हम देखेंगे, वो हम उसे नहीं देखेंगे, हम वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देखेंगे, दालें, बीन्स, पनीर, टोफू।
जो लोग एग्स खा सकते हैं वो एग भी ले सकते हैं एज अ प्रोटीन, जो लोग चिकन और बीफ और फिश खा सकते हैं वो लोग वो भी देख सकते हैं। पर ये सारी एग्जाम्पल है प्रोटीन की जो हर खाने में होनी चाहिए। ये वाला जो आधा आखिर का कोना रह गया ये है हमारे स्टार्चेस, जो कि हमारे कल्चर में देखें तो वो रोटी चावल है, कुछ लोगों के कल्चर में पास्ता है, कुछ लोगों के कल्चर में कॉर्न है, और कुछ लोग हम लोग भी ब्रेड खाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में जो चीजें अनाज से बन रही हैं, ग्रेन से बन रही हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हैं और वो हमारे एक कोने में फिट होनी चाहिए, पूरी प्लेट में नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर मैं हम अपने साउथ एशियन कल्चर का लाएं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम चावल निकालते हैं प्लेट में, ठीक है, उसके ऊपर हम उसमें चीजें डालते हैं, रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जी रखेंगे, फिर हम दाल रखेंगे, फिर हम कॉर्नर में चावल डालेंगे, जैसे कि हम रोटी बाद में देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो इंटेक है चावल की वो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत हेल्पफुल हैंडआउट है इस सॉरी बहुत हेल्पफुल स्लाइड है जो हैंडी पोर्शंस के ऊपर बनाई है कि वेजिटेबल्स इतनी सारी खानी है, मीट फिश पोल्ट्री या दाल एक कटोरी या साइज ऑफ योर पाम खाना है। ग्रेन्स एंड स्टार्चेस को उन्होंने मुट्ठी बनाई है। मैं हमेशा इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि अगर एक कटोरी चावल है तो वो हो गया, इसके बराबर ही हो जाती है कटोरी। और या फिर मैंने जो है आलू अगर कभी खाना है, क्योंकि हमारे कल्चर में हम लोग आलू शालू थोड़ी खाते हैं रोस्ट बीफ के साथ, मगर उनके कल्चर के हिसाब से उन्होंने बनाया। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जी हम रोटी जो बनाएंगे वो हमारी रोटी का जो बॉल होना चाहिए वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन मैं उसको इसी तरह कह देती हूँ 6 से 8 इंच की रोटी और चावल 1 कप, और अगर आप पास्ता वगैरह खाते हैं तो वो भी 1 कप ही हो जाता है। फैट ऑयल प्लीज कम यूज किया कीजिए खानों में, कोई अच्छी चीज नहीं है। चाहे आप महंगे से महंगा तेल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, कम ही करें तो बेहतर है। अब एग्जाम्पल्स आ गई साउथ एशियन कल्चर की। अब ये देखो आप लोग राइस कितना कम है इस प्लेट में, और मैं भी वेजिटेरियन सोर्सेज वाली पिक्चर भी है, इतनी सारी सब्जियां हैं और इन्होंने मोस्टली कच्ची सब्जियां रखी हैं। आई थिंक ब्रोकली शायद स्टीम्ड होगी, और फिर ये चिकन के पीसेज हैं। अब आ जाता है हमारा रोटी वाला आइटम। इन्होंने एक छोटी सी रोटी रखी है, आप देखें तो ये बहुत छोटी रोटी है, और थोड़े से चावल रखे हैं। हो सकता है मैं और आप ये बोलें कि भाई कोई एक चीज दे दो पूरी, छोटी छोटी 2 रोटियां दे दो, चावल हटा दो। आई वुड डू द सेम, या मैं बोलूंगी रोटी हटा दीजिए, 1 कटोरी चावल दे दीजिए। भिंडी है, पकी हुई सब्जी, कच्ची सब्जी में सैलेड है, और फिर चिकन का 1 पीस है। अभी तक वेजिटेरियन है, आ गया वेजिटेरियन। यहाँ पर है मेरे पास कच्ची सलाद है, फिर पकी हुई सलाद है, और इन्होंने रखा है दाल, पकी हुई दाल रखी है और चावल रखे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, दाल चावल सलाद और थोड़ी सी पकी हुई सब्जी। अच्छा अंबर जी, एक क्वेश्चन है। अभी मैंने सुना है डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि रोटी और चावल साथ में नहीं खाना चाहिए, या सब्जी रोटी खाओ या दाल चावल साथ में खाओ, एक ही चीज खाओ। वो इसलिए कहते हैं कि ये इस वजह से कहते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि आप फिर आप क्या होगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा खा लेंगे। अगर आपको दोनों चीजें खानी है ना तो आपको इतना कम खाना पड़ेगा, इतना सा चावल और इतनी सी 1 रोटी। तो वो इसलिए डॉक्टर साहब ये मना कर देते हैं। एक्चुअली मैं भी मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं खाने बैठूंगी तो मैं चावल भी इतना ले लूंगी, रोटी भी इतनी ले लूंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस ऑप्शन को हटा ही दो यहाँ से। लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, हम रॉन्ग हैं क्योंकि हम ज्यादा खा रहे हैं उसको। अगर आप इतना कंट्रोल में खा सकती हैं कि लिटरली ये 3 टेबल स्पून चावल है और 1 छोटी सी रोटी है, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो आप कर सकती हैं। तो ये डॉक्टर साहब इसलिए मना करते हैं कि इट्स अबाउट योर ओन कंट्रोल। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है देन यस। अगर आपका कंट्रोल मेरी तरह का है जो कि मेरा नहीं है, मैं एक चीज खाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मैं दोनों चीजें ज्यादा खा लूंगी, इसलिए मना करते हैं। हाँ, इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। नॉन वेज जब खा रहे हैं ना, तो चिकन के अगर खा रहे हो तो देन टेक ओनली द नॉन वेज, डोंट टेक राइस और रोटी इसके साथ ना लो। अटेरियन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉन वेज है तो नॉन वेज ही। ये भी है कोई मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नॉन वेज है तो क्या हुआ, नॉन वेज के साथ भी हम खाएंगे, सब्जी तो खाएंगे, हाँ रोटी भी खाएंगे बिल्कुल। ये वाली एग्जाम्पल आप देखें, इसमें उन्होंने चिकन के साथ राइस खाया है और सब्जी है बिल्कुल। क्योंकि देखिए अभी जो बैलेंस मील हमने पढ़ा ना, वो हमने यही देखना है कि कुछ भी हो सकता है, अब वो नॉन वेज हो या वेज हो, सब्जी और दाल तो कंपलसरी है।
ये है हमारी हेल्दी प्लेट, राइट। तो अब उसमें मेरी चॉइस है कि मैं आज चिकन खाऊंगी और मेरी चॉइस है कि मैं डिनर में दाल खाऊंगी। तो कोई भी हो, लेकिन मेरे वेजिटेबल्स और मेरी चाट को मैं रिमूव नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अगर आप ठीक ठाक हो तो सभी कुछ खुशी से खा सकते हो। आपको डायबिटीज है, आप तब भी ये खाइए, डायबिटीज के तो मील्स आएंगे, तभी तो कहा हेल्दी ईटिंग है। ठीक, बिल्कुल शौक से खाइए, बस ये कि हेल्दी मील्स खाइए, राइट। राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, जो कि अगेन मैंने ये सब बताया हुआ है। ये एक्चुअली लिटरली ये स्लाइड हमने पहले भी सेम टू सेम देखी होगी, क्योंकि मैंने वही उठा के यहाँ रखी है। वो ये है कि 30 मिनट्स या 20 मिनट्स वॉकिंग करनी है, ताकि आपके हफ्ते के 150 मिनट हो जाए। और अगर आप चाहें तो फिर बीच में कुछ वेट रेजिस्टेंस करें, जो कि मैक्सिमम 2 दिन होनी चाहिए। वेट रेजिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है जिम ज्वाइन करें, पर्सनल ट्रेनर हायर करें। सिंपल अगर आप चाहें तो एक पानी की बोतल ले ली, जैसे 500 ml की है, और उसको सिंपल उठा के जो है ना, हमने हल्के हल्के सिंपल एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा कि मेरे इन मसल्स पे काम होगा। अभी मैंने क्योंकि इतनी हल्की बोतल ली हुई है ना, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भारी लूंगी तो उससे क्या होगा कि जब मैं 8वीं दफा कर रही होंगी ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी बड़ी होगी। दैट्स द गुड वेट फॉर मी। तो आप प्रैक्टिस के लिए 2-3 वेट्स ट्राई करें। मेरा जो आइडियल वेट है वो मोस्टली 3 पाउंड है। मैं 5 में मुझे बहुत दर्द हो जाता है, मैं 3 से कर सकती हूँ। 3 में क्या होता है, 7वें 8वें नंबर पे बर्निंग होती है और फिर मैं उसको 10 तक लेके जाती हूँ, परफेक्ट। लेकिन हाँ, अगर मैं रेगुलर करती रहती हूँ तो फिर मैं 5 भी कर सकती हूँ। तो कुछ लोग 2 से स्टार्ट करें प्लीज, कोई प्रेशर नहीं है। 1 पाउंड, 2 पाउंड और मे भी 500 ग्राम से स्टार्ट करें, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है पहले हमारा एरोबिक एक्सरसाइज, 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक और 20 मिनट्स डेली, जैसे आप लोगों को सही लगे। इससे क्या होता है, हमारा वेट मैनेज होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है, ब्लड शुगर्स, मेंटल हेल्थ। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ये कर रही है पिंक, इसने बेल्ट्स लगाई हुई हैं और हफ्ते में सिर्फ 2-3 दफा करनी होती हैं। ये बेल्ट्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ मिलती है। हमारे ऑफिस में हमने काफी ऑर्डर की थी और एक्चुअली हम क्लाइंट्स को देते थे काफी ज्यादा। तो उससे क्या होता था कि मुझे तो इसकी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिस में 1-2 लोग थे जिन्होंने जो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग देते थे। पर अगर आप लोगों के पास कोई जानने वाला है तो हम बैंड्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली इट गिव्स मी एन आइडिया, मे बी नेक्स्ट ईयर में हम लोग बैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे आप लोगों के साथ। आई विल ट्राई टू फाइंड समवन जो आए यहाँ पर और आप लोगों के साथ बैंड्स की, मैं बैंड्स आप लोगों को पहुंचवा दूंगी आपके घर पे और फिर हम बैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे। कि बहुत अच्छी है, बहुत इजी है ये। और बैंड्स ऐसी चीज है कि मतलब वेट्स, मुझे लगता है कि वेट फिर मैं 3 पाउंड में एक्सपर्ट हो गई तो मुझे 5 पाउंड चाहिए, 5 में हो गई तो फिर मुझे 8 चाहिए। बैंड्स में क्या होता है कि हम इसका जो है ना नॉट लगा के इसको छोटा कर देते हैं, तो फिर मैं इसको और स्ट्रेच करती रहती हूँ, तो मैं पावर ज्यादा लगा सकती हूँ उसके ऊपर। अब हमारे प्रोग्राम की बात है। फ्री ऑफ चार्ज हमारी सर्विसेज हैं। हम लोग सेल्फ रेफरल में या फैमिली डॉक्टर का रेफरल या डायबिटीज स्पेशलिस्ट के रेफरल से अपॉइंटमेंट्स बना देते हैं। हमारे यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और वो हर उस बंदे को हम देख सकते हैं जो 18 साल से ऊपर है, कम नहीं होना चाहिए। और रिस्क है, प्री डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है उसको। 2 साइट्स हैं हमारी, एक ब्रैम्पटन में, एक माल्टन में, आप लोगों को पता है। एक 4 कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर है, एक ब्रामली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। और फिर आप वहां पर जो है मेरे जैसे लोगों से मिल सकते हैं जो सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर्स होते हैं, या वो नर्सेज होंगी या डाइटिशियन होंगी, RN होंगे, RD होंगे। और हमारे अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को तो मुझसे भी ज्यादा पता है, ग्रुप सेशन होते हैं जो कि अभी हम वर्चुअल कर रहे हैं, और एक्चुअली हम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन पर्सन सेशंस एज वेल। एंड क्वेश्चंस जो कि आप लोग साथ साथ पूछते रहते हैं, तो अब हम इसको शेयर नहीं करते स्क्रीन को। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, एक क्वेश्चन है मेरा। मेरे हस्बैंड को 27 साल से डायबिटीज है। तो आज उनके पास ये कंडीशन है कि दो साल हो गए, 2 साल भी नहीं, 1 साल अभी अभी हुआ ऐसा कि इनका जो बोन है, बैक बोन, उसमें L1 और L5 में कुछ दबाव आया है नर्व्स में। तो उसकी वजह से इनकी जो पैर है, जो पैर नमनेस हो जाती है उनमें। आपने नमनेस का जिक्र भी किया था, इसलिए मेरे को ध्यान आ गया। तो उनकी नमनेस आ जाती है। तो वही वाले आप जैसे कह रही है, मुझे वगैरह टाइट वाइट वाले ये सब करते हैं, और वो दवाइयां भी खाते हैं जो जिससे सेंसेशन ठीक हो जाती है। नाम तो मुझे याद नहीं है,
लेकिन कल हम लोग गए थे, कल वैलेंटाइन डे था, तो मेरे बेटे बहू ने हम लोगों के लिए बुकिंग करा दी पिक्चर हॉल की। तो ही वॉज ओके व्हेन ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस। तो लेकिन जिस समय वो बताने लगे कि जब मैं पिक्चर हॉल में पहुंचा और मैं लोगों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था मेरे पैर नहीं चल रहे हैं और मैं कहीं पे भी गिर जाऊंगा। इट्स अ वेरी बैड साइन। तो इससे मेरे को लगा कि इट इज समथिंग वेरी सीरियस। तो जबकि जब मैंने अपना ब्लड वर्क करवाया था, तो इनका भी हड्डियों वगैरह का सब करवा दिया था। तो उसको लेके आज ही रिपोर्ट लेने के लिए गए हैं। कल हम कैरोप्रैक्टर के यहाँ जाएंगे, पूछेंगे क्या है क्या नहीं, तो वो तो हम कराएंगे ही। लेकिन आपकी जो बात मुझे लगी कि बॉल वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बॉल लेकर आ जाऊं, उनको बोलूं पैर में चलाते रहो, तो शायद बहुत फर्क पड़ेगा। वो तो आपकी बात मुझे समझ में आ गई, ब्लड शायद हैवी हो गया होगा। जबकि थिनर वो ले रहे हैं, ब्लड थिनर उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। नहीं, वो ब्लड थिनर डिफरेंट तरीके से काम करता है और ये सेंसेशन वाला बिल्कुल डिफरेंट वाली कैटेगरी है। वो समझने के लिए हमें ऐसा लगता है कि गाढ़ा और पतला, लेकिन ब्लड थिनर जो है वो डिफरेंट, वो हार्ट और किडनी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। और उनके लिए हो सकता है ये प्रीगाबालिन या कोई ऐसी दवा लेते होंगे। प्रीगाबालिन लेते हैं, 2 ले रहे थे, डॉक्टर ने कहा 3 कर दो। इज इट ओके? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। आप क्या करें, ये बॉल वाली एक्सरसाइज करने से पहले एक दफा कायरोप्रैक्टर के पास तो आप कल जा ही रहे ना, तो आप आज ही उनसे पूछिएगा। हाँ, आप उनसे आज जाके जरूर पूछिएगा कि इस तरह से वो कह रही थी, क्योंकि ये जो बॉल वाली एक्सरसाइज है ना, ये तो बिल्कुल एक बेसिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। और आपके हस्बैंड की जो लग रहा है कि वो थोड़ा एडवांस स्टेज है, तो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हम ऐसी चीज करें जिससे उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो बेस्ट यही है कि एक्सपर्ट से पूछें, और क्योंकि वो उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उनकी करंट सिचुएशन सब जानते हैं। हाँ, बस अनफॉर्चुनेटली वो भी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गए, फिर कारपेंटर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा वो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं रूबरू आपकी बात करवा देती अभी उनसे। हाँ, नहीं, वो तो खैर हम वैसे भी बाद में भी कर सकते हैं बात। लेकिन आई एम हैप्पी कि आप लोग ऑलरेडी सीकिंग एडवाइस टू द स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो लोग जितना अच्छा बताएंगे, और फिर वो असेसमेंट भी कर सकते हैं ना इन पर्सन, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, थैंक यू। तो उस्मा है यहाँ पर, ये अपनी सिर्फ प्रिटी पिक्चर दिखा रही हैं? आ गई उस्मा? उस्मा यहीं पे रहती है, आ जाएगी तुरंत। बिल्कुल इधर हूँ, बिल्कुल उधर हूँ। तो उस्मा, मैंने सॉरी आपको पहले से ये बम नहीं पड़ा था कि नेक्स्ट वीक जो है वो आई नो एक्चुअली हमारा एक इवेंट आया और मुझे हर हाल में उसमें जाना है। तो इवेंट नहीं है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो इसकी वजह से कीशा को आना पड़ रहा है। तो अंबर कोशिश करें कि अगर आपको कोई ट्रांसलेटर वहां मिल जाए आपकी ना, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, तो इट्स गुड टू हैव आपके यूज से कोई आ जाए ना। और उन्हें कितनी देर चाहिए? 1 आवर चाहिए? हाँ, 1 आवर ही होगा, क्योंकि लिटरली टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं। अब वो आके सिंपल फीडबैक सीख करेगी, या जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे तो उस पर बात कर लेगी। और अनलेस हमें कोई 1 महीने में कोई टॉपिक समझ आ जाता है, वी कैन ऐड अ टॉपिक एज वेल। क्योंकि आपकी तरफ से किसी और ने भी आना था। हाँ, नहीं, वो वाली अभी बात नहीं हुई। आई थिंक वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आएंगे। ठीक है। अच्छा उस्मा, आप लोगों ने इन पर्सन करने का सोचा मार्चेंट वुमेन काउंसिल का, कि इन पर्सन का आप लोगों का भी फ्लैट है? सीनियर्स का हम नहीं कर रहे इन पर्सन। अच्छा, वो जूम पे ही ठीक है, ताकि जहां भी हो अटेंड कर सके, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए इजी हो। नहीं, मुझे अभी बातें करते करते आइडिया आया था कि वो जो बैंड एक्सरसाइजिंग होती है ना, वेट रेजिस्टेंस की, तो मैं मेघना को बोलूंगी अगर हमें कोई इसके लिए इंस्ट्रक्टर मिल जाए ना, तो ऑल वी नीड टू डू कि हम इन लोगों को या तो पोस्ट कर देंगे या जो भी होगा, वी कैन टॉक अबाउट इट। हम बैंड्स प्रोवाइड कर देंगे एंड दे कैन डू एक्सरसाइज यूजिंग द बैंड्स। तो वो एक अच्छी स्किल है, दे कैन हैव इट इनसाइड देयर होम, दे हैव द रिसोर्स अवेलेबल एंड दे कैन डू इट फॉर लेटर ऑन टू। हमारा इन पर्सन मार्च 12 को इंटरनेशनल वुमेन डे हो रहा है मॉल्टन में ही। तो कुछ ऐसे तो हम वहां भी दे सकते हैं। ओ परफेक्ट, तो ठीक है, फिर मैं इस पे काम शुरू कर देती हूँ। 12 मार्च कह रही हैं? जी हाँ, तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी। आप लोग सब मार्क कर लीजिए कैलेंडर्स। इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 12 12 से 4 बजे मॉल्टन कम्युनिटी सेंटर। अगर आपको तो मैं ऑफिशियल वो भेज दूंगी इनविटेशन व्हाट्सएप में। अदरवाइज संडे है सैटरडे? सो 12 मैं अंबर की पहले बात सुन रही हूँ, संडे है। अच्छा, ठीक है जी। कमलजीत जी, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि अदरवाइज तो 8 मार्च को होता है ना ये। जी, लेकिन 8 मार्च तो होली।
सेलिब्रेट आप कर रहे हो? जी 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 जी, उसकी सेलिब्रेशन तो स्टार्ट हो गई है। मुझे 3 मार्च से लेके तो 1 अप्रैल तक अभी सारी इनविटेशंस आई हुई हैं। तो वो लोग डिफरेंट डेज पे। गीता जी, आप मुझे लिप्स रीडिंग अभी नहीं आती है, आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा, कितने बजे? 12 से 12 मार्च को है ना? 12 मार्च को 12 से 4। 12 से 4, 2-2-12 है, 12 मार्च और 12 से 4। ओके। इस दफा हम लोगों ने पैनल डिस्कशन रखी है और एड्रेस तो आप भेज देंगे ना मिल्टन? जी जी, आपको भेज देंगे। ओके। फ्लायर जो है वो शेयर हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे फेसबुक पे भी है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूंगी। डाले हुए हैं। तो हमारा जो पैनल डिस्कशन है उसका थीम है एंगेजिंग मेन एंड बॉयज टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। आप सब लोगों की हमें शमूलियत चाहिए, आप लोगों की प्रेजेंस चाहिए, आप लोगों की फीडबैक चाहिए, इनपुट चाहिए। गुड टू सी यू हरीश अंकल, एक यहाँ नजर आया चेहरा। तो आई थिंक इस टॉपिक की बहुत जरूरत है हमें डिस्कस करने की, इसलिए हम डिस्कशन क्या था? दोबारा से बोल दीजिए। जी, तो एंगेजिंग मेन टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस पे बात होगी, पैनल डिस्कशन होगा। 4 पैनलिस्ट हैं हमारे, उस पे हम बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी, वो मैं इसका मतलब अभी बताती हूँ। पहले मैं ऑफिशियली अंबर का थैंक्स कर लूं, क्योंकि अंबर का लास्ट सेशन था हमारे साथ। बड़े पेशेंस से हमारे साथ ये रहती हैं, हमारे हर सवाल, कभी इन्होंने ये नहीं कहा मैंने जाना है बस 1 घंटा हो गया है। नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और इतना अच्छा उनका वो स्पीच है ना, तो हमको लगता है हमको छोड़े नहीं, फिर से कुछ कर दो के साथ। नहीं, मैं भी नहीं जा रही, मैं भी आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। बहुत पॉजिटिव वेव्स है आपकी। थैंक यू। देखिए ना, ऐसे पता चलता है कि कैसे आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, उसमें क्या हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या आप लोग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अंबर दोबारा आए, तो अंबर दोबारा कौन से सेशंस लेके आए, क्योंकि हम रिपीट भी नहीं चाहते कि चीजें रिपीट हो रही हो। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है ना? जी हर्षा जी, अगेन आप भेजिए मुझे सारी लिस्ट कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग उसको मुझे ईमेल कीजिए, ठीक है? या यहाँ किसी एक का हम कर लेते हैं, जैसे किसी एक को आप भेज दीजिए सारे, और वो मुझे बताएं कि ये हम चाह रहे हैं। फिर मैं बात करती हूँ कि हम कौन से प्रेजेंटर्स ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आपने जिस तरह लास्ट टाइम अंजना के लिए मैसेज दिया था कि वो नी की एक्सरसाइज, तो 22 मार्च को अंजना का प्रोग्राम है। ओके, अंजना पूरी कोशिश कर रही है कि जो आप लोगों ने कहा है वो लेके आए। बट आई जस्ट डबल वर्थ उस्मा से कि अगर आप लोगों के कोई भी इंटरेस्ट के टॉपिक्स है ना, वो अगर हमें अहेड ऑफ टाइम दे देंगे आप लोग, तो समटाइम्स क्या होता है कि उसका मटेरियल जमा नहीं होता, बनानी पड़ती है प्रेजेंटेशन, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर होगा तो मैं फिर अपना पूरा होमवर्क करके आऊंगी। और जैसे उस्मा कह रही है कि रिपीटेशन तो नहीं करनी ना, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल। और क्योंकि 12 महीने हैं, अगर अगला फिस्कल ईयर में हम इसको वापस रिन्यू करते हैं, अपना सारी जो मुझे और उस्मा को सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी वो हम खुद करेंगे, मगर एटलीस्ट हमें प्रॉमिसिंग तो लगे ना कि हमारे पास 12 टॉपिक्स तो हैं बात करने के लिए। वो अगर आपके पसंद के होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। कोलेस्ट्रॉल इज ओके, कोलेस्ट्रॉल इज ओके, क्योंकि यहाँ सबके कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम होता है। मुझे याद है किसी ने उस्मा पहले भी बोन्स का, बोन हेल्थ का बोला था। बिल्कुल, हमारे उसमें था ये हम बोन हेल्थ पे बात करेंगे। तो उस्मा आई थिंक आपको वो टॉपिक भी डिस्कस करना है। आई विल टेक अ लीड फ्रॉम हियर, तो फिर आप अपना रिज्यूम करें डिस्कशन, और फिर हम लोग इंशाल्लाह हम दोनों आपस में बात करेंगे। और आप लोगों को मैं आई विल सी यू वेरी सून, ठीक है? चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। बाय।